اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 9 پولیٹیکل سائنس میں ہم پڑھ رہے ہیں ورکنگ آف انسٹیٹیوشنز۔ اس میں ہم مینلی 3 انسٹیٹیوشنز کے بارے میں پڑھیں گے یا پڑھا ہے ابھی تک: لیجسلیچر، ایگزیکیوٹیو اور جوڈیشری۔ لیجسلیچر کے بارے میں ہم نے پڑھا، دیٹ از پارلیمنٹ۔ اس کے بعد ایگزیکیوٹیو ہم پڑھ رہے ہیں، تو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا پرائم منسٹر اینڈ کونسل آف منسٹرز، اور پھر بعد میں ہم نے پرائم منسٹر کے پاورز بھی دیکھے۔ تو آج ہم دا پریزیڈنٹ آف انڈیا کے بارے میں پڑھیں گے، چونکہ پہلے ہی ہم نے معلوم ہے ہمیں جو پرائم منسٹر آف انڈیا ہوتا ہے وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے، اور جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے۔ اور جو انڈیا کا پولیٹیکل سسٹم ہے، اس میں جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے وہ اس کے نامینل پاورز ہوتے ہیں، یعنی برائے نام اس کے پاورز ہوتے ہیں، اور ریئل ایگزیکیوٹیو جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر آف انڈیا ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ آف انڈیا کی وہی حیثیت ہے جو برٹین کی کوئین ہوتی ہے، یعنی وہاں پر کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہے، وہاں پر جو برٹین کی کوئین ہوتی ہے اس کے جو فنکشنز ہیں، اس کے جو پاورز ہوتے ہیں، وہی فنکشنز یا وہی پاورز پریزیڈنٹ آف انڈیا کی ہوتے ہیں، صرف سیریمونیل ہوتے ہیں، صرف بڑی بڑی فنکشنز کو اٹینڈ کرنا، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے یا کہا ہے کہ اس کو ٹوتھ لیس ٹائیگر بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ ٹائیگر ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، لیکن اس کے پاس پاورز نہیں ہوتے ہیں وہ جو ایکسرسائز کرے۔ آن دا ادر ہینڈ پرائم منسٹر آف انڈیا جو ہوتا ہے وہ ریئل ایگزیکیوٹیو ہوتا ہے، اس کے پاس پاورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صرف پریزیڈنٹ آف انڈیا کیا ہوتا ہے؟ سیریمونیل ہیڈ، ٹھیک ہے۔ تو اور لیکن جتنی بھی انڈیا میں جتنے بھی کام کاج ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے جتنے بھی فنکشنز ہیں، تو وہ کس کے نام پر ہوتے ہیں؟ ساری کارروائی جو ہوتی ہے کہ وہ کس کے نام پر؟ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے نام پر ہوتی ہے۔ اور پریزیڈنٹ کا کام فنکشن جو ہوتا ہے ساری پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی سپرویژن کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں کیا وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کر رہے ہیں، یہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو پریزیڈنٹ آف انڈیا ہوتا ہے یہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں ہوتا ہے، ہی از الیکٹڈ اور شی از الیکٹڈ بائی اے پروسیس وچ از کالڈ الیکٹورل کالج، یعنی پریزیڈنٹ آف انڈیا کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں گے۔ اور اس کو جو اپوائنٹ کرتا ہے اس کو، اس میکینزم کو، اس سسٹم کو ہم بولتے ہیں الیکٹورل کالج۔ اور الیکٹورل کالج میں کون کون ووٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے، ایک سارے پارلیمنٹ ممبرس یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے جتنے بھی ممبرس ہوں گے وہ کس میں؟ وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ دے کاسٹ دیئر ووٹس۔ اور جتنے بھی اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلیز ہوتی ہے، جتنی بھی لیجسلیٹو اسمبلیز ہوتی ہے، ایم ایل ایز ہوتی ہیں، وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، یعنی اس میں ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتا ہے، پیپل اس کو الیکٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو پیپل کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، چاہے آپ کے پارلیمنٹ ممبر ہیں یا آپ کے ایم ایل ایز ہوتے ہیں یا ایم ایل سیز ہوتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے الیکشن میں حصہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، دی کاسٹ دیئر ووٹس اینڈ دس جو جس پروسیس سے یہ جو پریزیڈنٹ آف انڈیا الیکٹ ہو کے آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں الیکٹورل کالج، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح سے ہم کہیں گے کہ جتنے بھی لوگ پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے کھڑے ہوں گے تو جس کو زیادہ ووٹس آتے ہیں تو اسی کو پریزیڈنٹ آف انڈیا الیکٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ جس طرح سے پرائم منسٹر آف انڈیا کے لیے ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے،
नो डाउट जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी हासिल करती है उसी पार्टी का या उसी कोलिशन का, उसी अलायंस का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता है। लेकिन कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मुझे डायरेक्ट वोट इलेक्ट किया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन नहीं है। वो सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, क्योंकि लोगों ने उसको डायरेक्टली चुना होता है। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो पावर्स होते हैं वो भी नॉमिनल होते हैं, ठीक है। उसको सिर्फ हम करते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होती है दे आर कैरीड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने भी डिसीजंस, जितनी भी पॉलिसीज, जितने भी एग्रीमेंट, जितने भी ट्रीटीज साइन की जाती है चाहे दूसरे ममालिक के साथ, ठीक है, वो किसके नाम पर, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर साइन की जाती हैं। और जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो भी किसके नाम पर किए जाते हैं, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट वो अपॉइंटमेंट्स भी किए जाते हैं, जिनमें जैसे किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको ये करना है, अपॉइंट करना है, ठीक है, या इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट्स के जजेस, ठीक है, या गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स, दूसरे ममालिक में हमें एम्बेसडर्स भेजने हैं, या इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन करनी है, एग्रीमेंट साइन करने हैं, ये सारे किसके नाम पर साइन किए जाते हैं, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और लेकिन बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का, ठीक है। यानी जितनी भी पावर्स हैं वो एक्सरसाइज किए जाते हैं, यानी नाम किसका आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद कुछ नहीं कर सकता है, उसको किसका एडवाइस लेना पड़ता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन इलेक्ट करता है, पीपल डायरेक्टली। इसका मतलब हो गया नाम तो किसका आता है, हेड ऑफ स्टेट का यानी प्रेसिडेंट का, लेकिन असल में जो काम करने वाले हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और प्रेसिडेंट कभी भी क्या कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कह सकता है कि इस एडवाइस को आप रिकंसिडर कीजिए, ठीक है, यानी इस एडवाइस को आप रिकंसिडर कीजिए। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोबारा वही एडवाइस देते हैं, दैट मीन्स कि उसको लाजमन उस पर साइन करने होते हैं। फाइनली या लेजिस्लेचर में यानी पार्लियामेंट में अगर कोई बिल लॉ बनती है, इन दोनों लोकसभा में भी उसको पास किया जाता है, राज्यसभा में भी पास किया जाता है, या राज्यसभा में पास किया जाता है, लोकसभा में पास किया जाता है, उसके लिए उसके बाद किसके लिए भेजा जाता है, वो फॉर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक मरतबा वो वापस भेज सकता है कि इसको आप क्या कीजिए, रिकंसिडर कीजिए। अगर फिर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट दे पास इट अगेन, ठीक है, तो उसके बाद उसको लाजमन साइन करना ही करना है। दैट मीन्स कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर वो वैसे ही भेजें यानी कोई चेंज उसमें नहीं करेंगे, चाहे लेजिस्लेचर में उसको में कोई चेंज नहीं की गई, तो दोबारा दूसरी मर्तबा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उस पर लाजमन साइन करने ही करने हैं, ठीक है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक वक्त में, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट थिंग है इसमें कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी एक काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद कर सकता है, यानी जब इलेक्शंस के बाद जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका जो लीडर होगा उसको ये अपॉइंट करती है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी ये काम, यानी जब इलेक्शंस के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी या जो कोलिशन, ठीक है, जिसके पास क्लियर मेजॉरिटी आती है, या जो अलायंस जो होता है पॉलिटिकल अलायंस होगा जिसके पास क्या होगी, मेजॉरिटी होगी, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर सकते, उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को क्या कर सकता है, ये अपॉइंट करता है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जब
कोई पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या नहीं होगा कि मेजॉरिटी नहीं होगा, ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन है। यानी इसमें हम ने बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये खुद कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। सिर्फ एक चीज है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को क्या करता है, अपॉइंट करता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी को ऑन हिज ओन, जिस पॉलिटिकल पार्टी को क्या मेजॉरिटी होती है, उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को ये चुनता है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। में चुनता नहीं है बल्कि अपॉइंट करता है। अब इसके पास एक डिस्क्रिप्शन हासिल है। अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आती है, अब इसमें क्या है कि अब कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको ये बता सकता है कि किसी कैंडिडेट को ये चुन सकता है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अपॉइंट किया इसने। लेकिन उसमें इसको ये डिस्क्रिप्शन हासिल है कि ये उसको बताता है कि आपको विद इन a stipulated time, within a fixed time, you have to prove your majority in the floor of the house, ठीक है। तो यानी लोकसभा में आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी है। किसी ने ये दावा किया कि हम सरकार बनाएंगे, उस वक्त ये उसको क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कैंडिडेट, दैट लीडर हैज टू प्रूव मेजॉरिटी इन द फ्लोर ऑफ द हाउस विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर है ये ओनली नॉमिनल है, ठीक है। वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसी के नाम पर सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट की कैरी आउट की जाती है, बट इन रियल सेंस ही डज नॉट और she does not have the real power. She or he acts only on the एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दैट मीन्स कि उसको पावर्स है और वो सेरेमोनियल हेड है, ठीक है। बड़ी बड़ी फंक्शंस में उसको बुलाया जाता है, कहीं पर कन्वोकेशन है या कोई इनॉग्रेशन है, उस वक्त हम उसको क्या बुला सकते हैं, या उसको वो जॉइंट हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट को वो खिताब करता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो दिखावे के लिए, या इंटरनेशनल ट्रीटीज उसके नाम पर साइन की जाती है। ये सारा काम किसके कहने पर, या जो इम्पोर्टेंट पोस्ट्स होते हैं, इलेक्शन चीफ जस्टिस होता है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स होते हैं, या इसी तरह से क्या कहेंगे हम कि गवर्नर्स अपॉइंट करने हैं, या इसी तरह से एम्बेसडर्स अपॉइंट करने हैं, तो ये किसके एडवाइस पर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर होते हैं। तो काम तो, नाम तो किनका आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, बट इन रियल सेंस द power is enjoyed, the power is exercised by the council of ministers headed by the prime minister of India. तो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इट इज अ टूथलेस टाइगर एंड इट इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। दैट इज द जिसको हम बोलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहाँ पर लिमिटेड उसके पावर्स है। इसी तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी पावर्स लिमिटेड होते हैं, और सारा काम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, लेकिन नाम किसका आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो इट वाज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसमें एक और खास बात कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन जो होता है इनडायरेक्ट होता है, इसको इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है, उसमें तमाम पार्लियामेंट मेंबर्स दोनों चैम्बर्स के, दोनों हाउसेस के, और प्लस लेजिस्लेटिव असेंबलीज के एमएलएज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उस वोटिंग में। इट वाज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कम विद अनदर टॉपिक। Okay, thank you.